Hello class, this is the maths class and now I am continue the matrices classes, and in the last lecture we will solve the exercise 4.2. Now we will continue this exercise, and if you have any problem then you will ask your problem, you can ask your problem. So now I am going to multiply, and we have a question that theta minus phi is equal to pi by t, or cos square theta, cos theta, and we have two matrices cos square theta, cos theta, sin theta, cos theta and sin theta and sin square theta. Again this matrix, so we have to prove multiply of this matrix is 0. So for proving this, now let's multiply this matrix. So for the multiply, the process is multiply the first column of this matrix and first row of this matrix, first column of this matrix, you are getting the first element. So now going to multiply cos square theta and cos square phi. Again cos theta, sin theta, cos phi and sin phi. You have this. Again we are multiplying cos square theta, cos, now from this, so now by multiply we getting this cos square theta, cos square sin by sin. Again we multiply by this, so we are getting cos square theta, cos phi, sin phi, and cos sin theta into sin phi. Here cos square theta, again multiply this cos theta and sin theta and sin square theta by this second row, first column, you are getting the second row, first element of second row. So cos theta sin theta, cos theta sin theta into cos square theta, again sin square theta, sin phi and cos phi, sin square theta, then multiply by this sin phi and cos phi. Again multiply the second row of the and second column, we are getting this cos theta sin theta and cos phi sin phi, cos theta sin theta and cos phi sin phi, plus sin square theta and into sin square phi. बेटा आपको करना क्या, अब इसमें आपको फॉर्मूले लेना है. आपको जो भी यहाँ पे आप देखो, आपको दो एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा एंड cos phi. वी आर गेटिंग द cos स्क्वायर थीटा एंड cos phi. बेटा cos थीटा cos phi यहाँ भी है और यहाँ भी है, cos थीटा cos phi. तो सर बेटा आप यहाँ से cos थीटा एंड cos phi को कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे cos थीटा cos phi. तो बचेगा क्या बेटा, ब्रैकेट में बचेगा, एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट में यहाँ पे होगा cos थीटा cos phi माइनस बचे, सॉरी प्लस में है तो प्लस sin थीटा sin phi प्लस sin थीटा sin phi. सिमिलरली यू आर डूइंग दिस ऑल्सो. बेटा यहाँ पे आप क्या लोगे, कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है cos स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा, तो यहाँ पे आप cos थीटा कॉमन लोगे और sin phi. जब cos थीटा और sin phi लोगे बेटा तो आपको मिलेगा यहाँ पे cos थीटा एंड sin phi कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा cos थीटा, अंदर आपको बचेगा. तो जब cos थीटा sin phi कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा cos phi, cos थीटा एंड sin phi हम कॉमन लेंगे, तो बेटा हम नीचे लिख दे रहे हैं, तो ये आपको बचेगा यहाँ पे cos थीटा एंड cos phi, sin phi कॉमन ले लें यहाँ पे, एंड अगेन यहाँ पे अगर cos कॉमन आउट हो गया तो आपको मिलेगा sin थीटा एंड sin phi. तो बेटा आप इसको cos थीटा एंड cos phi, सॉरी cos थीटा cos phi sin थीटा sin phi किस चीज़ का फॉर्मूला है, उसी का फॉर्मूला cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस phi, cos a minus b, what is a minus b, cos a cos b plus sin a sin b. So you can write here the similarly you can common rest of the other element. Here you are now going to common the cos theta sin theta and cos square phi sin square phi sin phi cos phi. So you can common cos phi and sin theta. Now we are going to, if cos phi and sin theta, तो cos phi
एंड साइन थीटा। बेटा आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा कॉस थीटा एंड कॉस फाई, कॉस थीटा एंड कॉस फाई, कॉस फाई प्लस साइन थीटा एंड साइन फाई। तो बेटा आपको जो भी एलिमेंट मिलेगा, अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉस थीटा साइन फाई ना लिख के हम इसको इसके लिए यूज कर ले रहे हैं कॉस थीटा माइनस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई। तो अगर हम बेटा नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई एंड कॉस थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई। अब बेटा आपको दिया है कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू वट, सॉरी थीटा माइनस फाई इक्वल टू पाई बाई 2। तो बेटा यहाँ भी आपको कॉस थीटा माइनस फाई यहाँ भी मिल जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाई यहाँ भी जाएगा, इस एलिमेंट में भी कॉमन करने पे आपको कॉस थीटा माइनस फाई मिलेगा। अब आपको पता है बेटा कॉस थीटा माइनस फाई, सॉरी थीटा माइनस फाई इक्वल टू पाई बाई 2। सो कॉस पाई बाई 2 द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 2 दैट इज कॉस 90 इज 0। बेटा ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो बेटा 0 के मल्टीप्लाई हम ईच एलिमेंट से करेंगे। यहाँ भी कॉस थीटा माइनस फाई है, यहाँ भी कॉस थीटा माइनस फाई, यहाँ पे जब रेस्ट एलिमेंट भी वहाँ भी आपका कॉस थीटा माइनस फाई समथिंग मल्टीप्लाई में कॉस थीटा माइनस फाई ही आएगा। तो आपका ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी। तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स। तो हेंस प्रूफ मल्टीप्लाई ऑफ दिस मैट्रिक्स आर 0। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव अ क्वेश्चन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन माइनस साइन एक्स प्लस 0 एंड साइन एक्स कॉस एक्स 0 एंड 0 0 1। या फिर मैट्रिक्स से आपको प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। नाउ फॉर डूइंग दिस पहले बेटा आप क्या करोगे, एफ ऑफ वाई क्या होगा, जहाँ पे भी एक्स होगी वहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ वाई हो जाएगा। और फिर आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एफ ऑफ वाई और एक्स दो वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। आपकी एक मैट्रिक्स एक्स मिली बेटा, वाई के लिए आप क्या लोगे, कॉस वाई माइनस साइन वाई, कॉस वाई माइनस साइन वाई एंड 0, सिमिलरली साइन वाई एंड कॉस वाई 0 एंड 0 0 1। बेटा आपको ये दोनों मैट्रिक्स होंगी, पहले आपको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम, तो आपको मिलेगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो आपको मिल जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो बेटा आप इसको पहले सॉल्व करिए और सॉल्व करके फिर बताइएगा कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। बस बेटा आपको बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कहते हैं, आप देखोगे कि वो आपको जो फंक्शन मिलेगा वो कॉस एक्स प्लस वाई के फॉर्म में मिलेगा। हेयर साइन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करने पे बेटा तो जब ये एक्स प्लस वाई होगा, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, अगेन यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स वाई वाली अदर एलिमेंट आपको 0 मिलेंगे। तो बेटा वो आपका फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का। तो solve the questions and if you have any doubt then ask your doubt. Okay, thank you. Now we'll see next class.